Welcome students. Today we will be continuing with the first chapter, Graphs and Economics. In that we have the point number 1.2, that is types of diagram. We are on page number 3. There are different types of diagram: pictogram, scatter diagram, line diagram, which is also known as time period, time series diagram, circle diagram, bar diagram, pie diagram. And the first one is time-based line diagram or curve picture, which show the shape or the slope of the relationship in economics between two variables. दो variables के बीच में आपको relationship दिखाता है. Curve or line diagram are often drawn. For example, a demand curve, a supply curve. वो भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है. डिमांड कर्व शोज द relationship between price and demand in the market, and supply curve shows the price and the supply in the market. The independent variable is measured on x-axis usually. जो independent variable है वो x-axis पर दिखाया जाता है, और जो dependent variable है that is measured on y-axis. Economics often uses the line diagram representing the time-based self-explanatory trends of the variable. लाइन डायग्राम जो है यूजुअली यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ट्रेंड्स ऑफ द वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द डिफरेंट टाइम पीरियड. Now, if we see this example, size of the population in the different time period. So, time period is the independent variable, and the size of population is dependent variable here. You can see in the schedule here, decade जो है time period है, जो independent variable है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. जैसा कि बोल रहे हैं कि 1951 से लेके 61 टाइम पीरियड ऑफ 10 इयर्स में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 21.64. तो इस टाइम पीरियड में ग्रोथ रेट था 21.64. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड के ऊपर, किस टाइम पीरियड में कितना पॉपुलेशन था. सो डिकेड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच वी विल शो ऑन x-axis, and the dependent variable, that is growth rate of population in the percentage, we will show on the y-axis. So when we draw the diagram, we have to take care that we show the origin, x-axis, y-axis. We name the x-axis and we name the y-axis as well. And the second type of the diagram is the bar diagram and the types of bar diagram. A bar diagram shows the distribution of the value of the variable in the various components. मतलब कि लाइन ग्राफ जो आपका था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बार डायग्राम में जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसा कि लिटरेसी रेट है इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके वेरियस कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स या टाइप्स हो सकते हैं. जैसा कि लिटरेसी रेट अमंग द मेल एंड द फीमेल, मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग डेटा दिया होगा लिटरेसी रेट का. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज लिटरेसी रेट, उसके वेरियस कंपोनेंट्स होंगे, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे. मेल एंड फीमेल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल लिटरेसी रेट. A vertical or a horizontal bar is drawn for each value of the variable. बार ड्रॉ किया जाता है horizontal or vertical. A separate bar is drawn for each section or time period, and the height and the length of the bar indicate the value for that section or time period. या आप vertical ड्रॉ कर सकते हैं या horizontal ड्रॉ कर सकते हैं, और सेपरेट बार आप दिखाएंगे फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड, और जो आपका हाइट है बार का वो डिपेंड करेगा वैल्यू कितना है उस टाइम पीरियड या सेक्शन का. Thus, by comparing the height
or the length of the bar, a comparison can be made of the values of the each section. जितना height या length आपके बार का होगा उतना ही value जो है वो ज़्यादा होगा उस section का, component का. बार डायग्राम यूजुअली 3 टाइप के होते हैं. सिंपल बार है, क्लस्टर है एंड डिवाइडेड बार डायग्राम है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बार. मीनिंग एंड द एग्जांपल ऑफ सिंपल डायग्राम. A simple bar diagram represents the value of only one variable over a base, say the various regions or the years. It gives the visual effect of the difference in the value of the variable between the regions or years. मतलब कि आपका जो सिंपल बार है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, बाय मंथली सेल ऑफ द चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप. तो यहाँ पे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज मंथ, तो वो बाय मंथली है. जनवरी फरवरी इज बाय मंथली, 2 मंथ्स का दिखाया है. और उसका सेल दिखाया है, कितने चॉकलेट सेल हुए हैं जैन फेब में, दैट इज 35 यूनिट. तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो बेस वैल्यू जो है वेरिएबल का एक ही है, ओनली वन. पर उसका आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कितना सेल हुआ है ड्यूरिंग दी बाय मंथ, जैन एंड फेब में, मार्च एंड अप्रैल में कितना सेल हुआ है चॉकलेट्स का, उसको आप दिखा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे जो भी आप बार बना रहे हैं तो वो वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बताएगा, दैट इज 35 चॉकलेट्स, 60 चॉकलेट्स इन मार्च एंड अप्रैल. मई जून में 65 चॉकलेट्स. तो जो बार बनेगा वो वैल्यू दिखाएगा ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज वाई एक्सिस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड इन दी 2 months. Then we have cluster bar diagram. In this type of graph or value of the common variable and over a common base are given more than one section. इसमें एक से ज़्यादा उसके components होते हैं या section होते हैं particular common variable का. जो भी common variable होगा उसका एक से ज़्यादा section होंगे related parameters. Hence we get the cluster bar. Cluster is for the group of bars. एक से ज़्यादा bars होते हैं for the same variable over the various base values. Example दिया है, if the base is time period, अगर आपका time period जो है वो independent variable है, base variable है, then the variable is literacy, then the variable literacy level and its values are expressed for 2 categories, namely female and मेल. आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिटरेसी लेवल है और लिटरेसी लेवल के एक से ज्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे बिकॉज ऑफ द क्लस्टर. दैट इज उसके 2 कंपोनेंट्स दिखाए हैं, फीमेल एंड मेल, जो for one time period and 2 bars showing the literacy level for female and male respectively. यहाँ पे literacy आपका dependent variable है, उसके 2 components हैं, female and male. To create the proper visual effects, आपको अगर तीनों के दोनों बार के बीच में difference दिखाना है तो आपको different colors यहाँ पे use करने पड़ेंगे. For example, we have this bar, क्लस्टर बार, जिसके अंदर 3 बार दिखाए हैं, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है एंड लार्ज साइज ऑफ यूनिट्स. तो 3 बार है क्लस्टर के अंदर, तो तीनों का आपने या तो डिजाइन डिफरेंट दिखाना है या फिर कलर डिफरेंट दिखाना है, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कलर कौन से सेल यूनिट के लिए है. स्मॉल साइज है विच इज फॉर दी डार्क ब्लैक कलर, और ये वाला जो आपने स्लैंटिंग लाइंस दिखाया है वो मीडियम साइज के लिए है. तो यहाँ डिफरेंट कलर्स यूज करेंगे या फिर डिफरेंट डिजाइन यूज करेंगे टू शो दी डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बाय मंथली सेल ऑफ द चॉकलेट बॉक्सेस ऑफ द डिफरेंट साइज इन द शॉप. जैन फेब, this is the independent variable
और उसमें आपने डिपेंडेंट वेरिएबल के 3 कंपोनेंट्स लिए हैं, डिफरेंट साइज लिया है आपने। स्मॉल साइज के चॉकलेट्स हैं, मीडियम साइज का है एंड लार्ज साइज का है। तो 3 बार क्लस्टर के अंदर होंगे जिसको आप डिफरेंट कलर या डिफरेंट डिजाइन से शो करेंगे। Then we have the divided bar diagram. In such diagram, every single value of the variable has the subcategory. उसका variable का subcategory होगा. Hence, we get the division in all the bars which represent a common variable and the common base value. यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेक्टर्स हैं, रूरल, अर्बन, एंड आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेल्स है जो आपने बाय मंथली दिखाया है, और उसको बाय मंथली आपने दिखाया है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर में। तो क्रिएट द प्रॉपर विजुअल इफेक्ट्स। यहाँ पे भी आप डिवीजन जो बार का बनाएंगे, बार के जो भी डिविजन्स होंगे, like you can see in the diagram which is divided bar, जिसमें 2 divisions हैं on y axis which is dependent variable we are showing cells, और x axis पे हम लोग बाय मंथली पीरियड दिखा रहे हैं जिसमें सेल हुआ है रूरल एरिया में। तो बार के 2 आपने डिविजन्स किए हैं, एक है सेल्स इन द रूरल एरिया एंड सेल्स इन द अर्बन एरिया। तो जो डिवीजन आपने एक बार में दिखाया है, 2 डिवीजन दिखाए हैं, दोनों को अलग कलर किया है टू डिफ्रेंशिएट कि रूरल में कितना आपने सेल किया है और अर्बन में आपने कितना सेल किया है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज द डिफरेंट कलर और द डिफरेंट डिजाइन इन द divided bar. Then we have the aspects to be considered while drawing a bar diagram. The first aspect is कि bar should be of the equal width. आपका जो bar होना चाहिए वो equal width या उसका thickness सभी bar का एक जितना होना चाहिए। दूसरा है length of the bar should be proportional to the value. जितना आपका वैल्यू हाई होगा उतना ही लेंथ हाई होगा आपके बार का, तो वो प्रोपोर्शन टू द वैल्यू होता है। देन डिस्टेंस बिटवीन द बार, जो ओरिजिन से बार आप बनाएंगे तो 2 बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज ऑल द बार शुड रेस्ट ऑन द सेम लाइन। उनका जो ओरिजिन है बार का एक ही लाइन से वो शुरू होने चाहिए, दैट इज द एक्स एक्सिस। और आपका बार हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और आपके जो बार्स होंगे, वर्टिकल बार होंगे, वो लेफ्ट टू राइट होंगे। मतलब आपका जो डेटा सीरीज है वो बिगिन होगा लेफ्ट से और प्रोसीड करेगा राइट साइड पे। नाउ पॉइंट नंबर 1.2.3 दैट इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज द डिवीजन ऑफ द सर्कल इन द डिग्रीज रिप्रेजेंटेड है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है आपका सर्कल होता है जिसके अंदर वेरियस डिविजन्स होते हैं और वो डिवीजन डिपेंड करेगा डिग्रीज के ऊपर। आपका जो पूरा सर्कल होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, तो उसमें जो आप डिविजन्स बनाएंगे वो डिग्री पे डिपेंड करेगा। इफ एन एंटायर सर्कल इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ एन एंटायर डेटा एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेटा रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल। अगर सर्कल को आप डिवाइड करके और उसके पार्ट्स दिखाना चाहते हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाना चाहते हैं तो फिर डिग्रीज प्रोपोर्शनल टू द डेटा, जो डेटा आपको दिया है उसको डिग्री में आपको प्रोपोर्शनेट डिग्री में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज पाई डायग्राम। तो जो डायग्राम आपको मिलता है बाय डिवाइडिंग द सर्कल इनटू वेरियस डिग्रीज, तो दैट इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। पाई डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं जो डेटा आप बार डायग्राम के लिए यूज करते हैं, सिंगल डेटा जो आप यूज करेंगे। Since an entire circle represent 360 डिग्री, पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, एंटायर डेटा जो है वो भी रिप्रेजेंट करेगा 360 डिग्री का। जो भी आपको सिंगल डेटा दिया है उसको आपको 360 डिग्री टोटल कंसिडर करना है। एंड द सेक्शन एंड द डिवीजन ऑफ द डेटा आर रिप्रेजेंटिंग बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन द डिग्री।
which is proportional to the each data section. तो जो आप सर्कल में डिविजन्स बनाएंगे, डिवाइड करेंगे सर्कल को, तो आपके डेटा को आप पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, डिग्री इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसा कि बुक्स है, बुक्स के ऊपर आपने 20% मनी स्पेंड किया है, तो यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट वैल्यू है वो 20 आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री, दैट इज टोटल डिग्री ऑफ द सर्कल, और फिर डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यू जो आएगा, आपने टोटल मनी कितना स्पेंड किया, तो टोटल मनी आपने स्पेंड किया है 100, तो यहाँ पे डिवाइड होगा बाय 100, दैट इज टोटल वैल्यू। तो आपको डिग्री मिलेगा कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको डिग्री मिलेगा 72। तो 72 डिग्री आपको जो अर्न हुआ है, दैट इज 20% इनकम दैट यू हैव स्पेंड ऑन बुक्स। तो 20% इनकम जो आप सर्कल में दिखाएंगे, तो 360 डिग्री में 20% आपने कन्वर्ट किया 72 डिग्री, तो ये जो आपने 20% दिखाया दैट इज 72 डिग्री। वैसे ही आप स्टेशनरी का 5% मनी स्पेंड है, 5% को कन्वर्ट करेंगे, multiply by 360 degree divided by 100, so you'll get 18 degree. So the 18 degree जो आपने spend किया है, that is 5% आपने income spend किया है on stationery. इसी तरीके से सारे जो भी component value है, money spend है, उसको आप convert करेंगे डिग्री में, और डिग्री आप दिखाएंगे सर्कल में। Now aspects to be considered while drawing a pie. 360 डिग्री मेक अ सर्कल, पूरा जो सर्कल है आपका वो 360 डिग्री का है। डिग्री फॉर सब डिवीजन आर कैलकुलेटेड इन द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी डिग्री है आपको जो भी वैल्यू है, डेटा है आपके पास, वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपको सर्कल का डिवीजन मिलेगा into 360 degree. If relevant data is to be compared across the region or time period, then two pie graph can be drawn side by side. दो pie भी draw करके, और अगर डेटा आपके पास दो रीजन्स का है या दो टाइम पीरियड का है, तो दो अलग अलग पाई ड्रॉ करके आप साइड बाय साइड कंपेयर करके डेटा को दिखा सकते हैं। फॉर अ सेट डेटा सेट विद अ स्मॉलर टोटल वैल्यू, अ सर्कल विद अ स्मॉलर डायमेंशन, मतलब कि अगर डेटा सेट स्मॉलर वैल्यू के साथ है तो उसका स्मॉल सर्कल आप बनाएंगे, और जो डेटा सेट लार्जर वैल्यू का है, ज़्यादा वैल्यू का है, उसका आप बड़ा सर्कल बना के और कंपेयर करके दिखा सकते हैं। Then we have types of graph, time series graph, graph for the continuous frequency, and logarithmic graphs. And आपके कोर्स में only time series graph है that we have learnt earlier.